हो जाता है, आपका भी लीव हो जाता है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक स्टार्ट यू। कर दीजिए मैम क्लास, हाँ, बस 2 ठीक है, सेकंड के अंदर ना। हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके। Okay. Good morning, everyone. First of all, welcome to this new session, sixth semester of Management Accounting lectures. I'm really sorry for this delay of 15 minutes. Some technical issue was there in office. Okay, I'm going to take Management Accounting lectures, जिसमें आप लोगों के in totality you have to study 5 units. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो पहली यूनिट है, इट्स बेसिकली टॉकिंग ऑफ द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. इट्स वी हैव टू डिस्कस where we have to discuss what do you mean by management accounting, how it is different from other type of accounting, like we have you have studied financial accounting in your first semester, you have studied cost accounting in your fourth semester. तो उन जो हमारी अलग अलग ब्रांचेज हैं अकाउंट्स की, उसमें कॉस्ट अकाउंट से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट कैसे है. Then we have to discuss two main concepts of cost center and cost unit, which we will discuss today. And then the second unit is talking of the concepts of budgeting and budgetary control. These basically we have to go through the concepts of different kind of techniques we use in management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से हमें कुछ टेक्निक्स पढ़नी है. एंड we have to go through some of the techniques, in which the first technique is the budgeting and budgetary control. With the help of different kind of budgets, we can prepare using different information and data, which may be helpful in the whole process of management accounting. ये एक बहुत important technique होती है management accounting में, and every organization is it's using this kind of technique. Second technique is standard costing and variance analysis. ये हमारी unit 3 या chapter 3 आप कह सकते हैं. ये हमें discussion इसका करना है. Then fourth unit will talk of the cost volume profit analysis, where we have to discuss the different kind of ratios, key factor, margin of safety, angle of incidence. ये वाला एक टॉपिक हमें कवर अप करना है. देन द लास्ट यूनिट विल be on the decision making process, where we have to talk of the cost which is involved in the whole process, which is bifurcated and fixed and variable costing, what kind of decisions we have to take, and what kind of information is being required, how we go with the whole process of decision making, where we talk of the fixation of selling price, कि हमें कितना selling price fix करना है, कोई नई मार्केट को एक्सप्लोर करना है, पेनिट्रेट करना है, कैप्चर करना है, कोई प्रोडक्ट को हमें अगर हम किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वेदर वी गो फॉर द डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, और वी शुड गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड रीसेल इट, और यूज़ इट इन आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं अलग अलग, वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम वो पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं, how the management is involved in these kind of finalization of these kind of decisions, which are जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. तो अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, देन यू मे बी एट ह्यूज लॉस. So it has to be every point needs to be considered while taking these kind of decisions. So how the management people, how the board, they are involved in such kind of decision making process, how they take and they finalize the decisions which will be beneficial for the overall growth and development of the organization. ये सारा का सारा हमें management accounting में concept को पढ़ना है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए द बुक विच आई रेफर इज बाय डॉक्टर M.N. Arora. I'll just type the name in the chat box so that you can get the correct name. Okay, some of you in your chat box has written that you have some other class also.
one more lecture at the same time is going on. I'm not sure कि technically तो ऐसा नहीं होता है, but अगर कहीं टाइम टेबल में लगा है तो मे बी they'll change it later on. और हो सकता है कि 2 टीचर्स अगर हैं तो you will be having another lecture of that subject also. ओके अमित, यू हैव आस्क्ड मी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे या थियोरेटिकल है. इट्स बेसिकली द फर्स्ट चैप्टर इज मोर और लेस थियोरेटिकल, बट रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स यानी 5 यूनिट अगर मैं बता रही हूँ जो आप लोगों को पढ़नी है, द फर्स्ट यूनिट इज द थियोरेटिकल एस्पेक्ट एंड द रेस्ट 4 इज न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स. तो उसमें आप लोगों को थ्योरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, नो डाउट थ्योरी किसी भी चैप्टर में आ सकती है, बट बाकी जो 4 आपकी यूनिट्स हैं सेकंड टिल 5th तो वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं. इट्स बेसिकली जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्वेश्चंस मिलते थे, थ्योरी के भी हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं. इसी तरह का आपका इसमें भी पैटर्न रहेगा. यू विल बी हैविंग numericals also where you have to prepare different kind of statements or sheets to have different kind of calculations. Okay, my lecture will be okay. अमित आपने बोला हिंदी में पढ़ाने के लिए, तो आई ट्राई कि जो मेरा लेक्चर होगा वो मैं मिक्स कर देती हूँ हिंदी या इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. और किसी भी टाइम पर अगर आपको लेक्चर के टाइम कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. जो आपका सब्जेक्ट है नोट्स के लिए थियोरेटिकल नहीं है पूरा का पूरा, आपके लिए ये थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल ज़्यादा है, कंटेंट जो वेटेज होगी टोटल पेपर में वो न्यूमेरिकल की ज़्यादा होगी. नोट्स के रिगार्डिंग शिफाली आपने मुझसे पूछा है कि नोट्स मैं देती हूँ कि नहीं. जो चीज़ें मैं क्लास में करा रही हूँ उनके जो शीट्स मेरे बने हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में अगर आप मुझसे चाहोगे तो मैं प्रॉपर नोट डिक्टेट नहीं करती, कहीं वैसे प्रोवाइड नहीं करती हूँ. बट हाँ, जो क्लास में क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसकी शीट मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूँगी. और जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ा रही हूँ, अगर आप वो लोग PDF चाहते हो तो आई विल शेयर दोज PDF which I have with me of this subject. Okay. निखिल आपने लिखा है we were asked to wait only for 2 minutes. देखिए आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कनेक्ट करने में, इसी वजह से आप लोगों का आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, 15 मिनट के करीब. आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं लेक्चर को ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बट अदरवाइज योर लेक्चर्स विल बी फ्रॉम 10 to 12. 1-2 मिनट की बात कभी कभार हो जाती है, बट अदरवाइज normally we start the class on time. 10 years के लिए जो आप लोगों ने अमित आपने क्वेश्चन पूछा है 10 years सफिशिएंट है या नहीं. एज फार एज 10 years स्टडी इज कंसर्न, पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप सिर्फ 10 years में से पढ़ें. मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि आप लोग कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक से ज़रूर पढ़ें. 10 years को आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ये पता रहेगा कि आपके पिछले 10 सालों में कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और अगर आप वो ट्राई करके अटेम्प्ट कर लेते हो, आपको वो सब आते हैं, तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. उसके लिए जब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो उसमें से आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अगर देखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से है. तो पर्सनली मैं ये कभी सजेशन नहीं देती हूँ कि 10 years बहुत है. बट हाँ, सिलेबस किसी एक रेफरेंस बुक से करने के बाद अगर आप उसको रेफर करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट. SOL की बुक भी नंदिनी, आई विल नॉट से कि SOL की बुक भी पूरी काफ़ी है. अपार्ट फ्रॉम दिस SOL बुक यू नीड्स टू गो थ्रू सम रेफरेंस बुक. वहाँ से आपको सिर्फ एक कंटेंट मेन पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है. अगर टाइम की शॉर्टेज है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर अलग बात है, वो फिर आपकी पर्सनल चॉइस है. बट पर्सनली मेरे से अगर आप सजेशंस मांग रहे हो, मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ. फिर जो आपको रेफरेंस के तौर पे जो बुक्स बताई गई हैं उसमें से अगर आप करोगे तो आपकी नॉलेज भी ज़्यादा बेटर होगी और आपके मार्क्स के हिसाब से भी यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स. ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. आप सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में यूज़ कर पाएंगे, साइंटिफिक अलाउड नहीं होते, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं.
ओके, फरहान आपने लिखा है आपके पास राजीव कुमार जी की किताब है, राजीव कुमार गोयल की, दैट इज़ ऑल्सो गुड। महेश, मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के अभी मैं रिप्लाई कर रही थी जो आप लोगों ने चैट बॉक्स पे लिखे हुए हैं। नाउ द बुक्स, आपके शायद लिंक पे किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की क्लास का शेड्यूल शायद आ रहा है। ये अब मैं नहीं इसमें बता पाऊंगी कि कहाँ आपके उसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि वो प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है और वो कैसा सब्जेक्ट है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जितना मुझे इंफॉर्मेशन है इट्स मोर और लेस थ्योरेटिकल पेपर फॉर यू, बट अच्छा पेपर है, अगर आप करना चाहते हैं इसमें तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, these are same questions you have. Okay, I'll just type the name of the books. It's one is by Dr. M.N. Arora. मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। एक राजीव जी की आपने जो पूछी थी, राजीव गोयल सर की, यू कैन हैव दैट वन ऑल्सो। एक आती है आपकी महेश्वरी एंड मित्तल की। ये तीन किताबें आपके लिए मैंने रेफरेंस में डाल दी हैं, महेश्वरी मित्तल, M.N. अरोड़ा एंड राजीव गोयल। आप जो बुक चाहें अगर आपके पास हैं तो आप उसमें से कर सकते हैं। अगर आप कोई और परचेज करना चाहते हैं, लाइब्रेरी से इशू कराना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। ओके, आई हैव शेयर्ड the screen where you must be able to PDF मैंने शेयर किया हुआ है। इट्स बेसिकली नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोगों ने जो अभी तक पहले 2 साल में अपने अकाउंट्स जो ब्रांचेस पढ़े हैं, 11th-12th में भी आपने अकाउंट्स पढ़ा है, ग्रेजुएशन के 2 साल भी आप लोग कर चुके हैं, उसमें भी आपने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं। जनरली जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इज बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर एक बहुत समराइज्ड वे में, मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, एंड यू हैव डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट वेज, डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव इन अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस के लिए अगर हम बात करते हैं लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये सब अलग अलग तरीके के ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा भी अगर आपने सुना है तो फोरेंसिक अकाउंटिंग भी है, ग्रीन अकाउंटिंग भी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा जिस पे लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है। तो आई एम जस्ट टेकिंग दीज टू branches of accounting, just financial accounting and your cost accounting. I hope my voice is clear, and in case some problem is there, just with the screen or my voice, just let me know. Okay, now when we start with the concept of management accounting, accounting in general is the preparation of different kind of statements for different purposes. मैनेजमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का टर्म जब हम कंपनीज में, बिजनेस में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द बोर्ड और द द ओनर्स ऑफ द बिजनेस और द होल टीम जो मैनेजमेंट में होती है, जो सारे के सारे डिसीशंस लेती है कि क्या काम होना है, किस तरह से होना है। दे फॉर्मुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, रूल्स, रेगुलेशंस, जिसके बेसिस पर कंपनी में काम होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इफ़ यू रिमेंबर, नाउ दीज 3 category or 3 branches we are going to discuss today: financial accounting, cost accounting, and then the third one which we have to study in this semester. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों ने क्या सीखा है? You have to prepare different kind of accounts, different kind of statements for the year ending on or balance sheet as on. ये आप लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली व्हाट वी स्टडी इज दैट वी प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? वी वांट टू कैलकुलेट
the profit or loss we have earned or incurred during the year. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जो भी सिस्टम पढ़े हैं, जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपने ये चीज़ पढ़ी है कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो मेन हमारा अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका पर्पस क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की फिगर मिलती है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की फिगर हमें मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और बैलेंस शीट हमें बताता है कि हमारे बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पर, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस दिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं पूरे एक साल में, अकाउंटिंग ईयर में। अब देखिए, आप फाइनेंशियल अकाउंट्स जब हम बात करते हैं तो अकाउंट्स आप 1 साल के, 2 साल के, 6 महीने के, 4 महीने के, क्वार्टरली, एनुअली से हाफ ईयरली बना सकते हो। ऑप्शंस हैं कंपनीज के पास, वो बनाते भी हैं। यहाँ पर मैं अभी अकाउंटिंग ईयर की बात कर रही हूँ, यानी पूरे 1 साल की बात कर रही हूँ। अकाउंटिंग ईयर 1 साल की अगर हम बात करेंगे तो अकाउंट्स नॉर्मली कब से कब तक बनते हैं? अप्रैल टू मार्च या जनवरी टू दिसंबर। तो या तो 31 मार्च या 31 दिसंबर। तो बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट हमारी होती है फॉर बैलेंस शीट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी एज ऑन। एक पर्टिकुलर डे पर बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हमारे बिजनेस की, इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, लायबिलिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स वी हैव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस की फिगर पता चलती है जो हमने ऑन किया है या लॉस हमने इनकर किया है। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलेट करने, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हु ऑल आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंट्स। तो जब हम ये अकाउंट्स बना रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो ज़्यादातर एक्सटर्नल पार्टीज यूज़ करती हैं, जिनमें हम कैटेगराइजेशन करते हैं स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स की। ऑल दी स्टेक होल्डर्स हु हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन द कंपनी। एज इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं, मेरे पास पैसा है, मुझे कंपनी में पैसा लगाने की सोच रही हूं मैं कि इस कंपनी में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो आई विल ऑल्सो सर्च सम और दी अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर फाइनल अकाउंट्स, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स बनाई हैं कि कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, कंपनी डिविडेंड देती है तो कितना देती है, कंपनी की लायबिलिटीज कैसी हैं, शेयर्स डिविडेंड दे रही है तो कंपनी कितना दे रही है। तो सबके अपनी अपनी सोच के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से एवरी स्टेक होल्डर इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर अकाउंट्स, from the accounts of the companies and finally taking their decisions. तो अगर मैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि आई वांट्स टू परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो जो मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगी वो फाइनल अकाउंट्स से अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगी अपने डिसीजन के लिए, एंड देन आई विल डिसाइड कि वेदर आई विल बी इन्वेस्टिंग माई मनी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। दूसरी स्टेक होल्डर्स या जो पार्टीज होती हैं, एक्सटर्नल पार्टीज, वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कंपनी के जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे आपके जितने भी शेयर होल्डर्स, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, वो इंटरनल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इंटरनल नहीं होते, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए टाइम पर द मेन फोकस इज ऑन द एक्सटर्नल पार्टीज where they take where they retrieve information from the statements which we have prepared for the particular year, and they decide or they finalize their decisions जो भी है। अब क्रेडिटर्स अगर हैं, क्रेडिटर्स मीन्स हमारे लिए लायबिलिटी है, मेरे जो क्रेडिटर्स होंगे वो उनकी मुझे उनको पेमेंट करनी है। अब मैं अगर मान लीजिए लोन लेने के लिए कहीं जा रही हूँ किसी के पास जिसका फाइनेंस का काम है, अब वो आंख बंद करके ऐसे तो दे नहीं देगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा, कोई अपने पेपर वर्क भी करेगा, ये कंफर्म भी करने की कोशिश करेगा कि उसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा अगर मुझे लोन देगा तो, क्या मैं उतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं लोन अगर ले रही हूँ तो मैं उसको रीपे कर पाऊंगी ऑलरेडी, और मेरी कितनी लायबिलिटीज चल रही हैं, वेदर आई विल बी एबल टू रीपे विद टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और कुछ सम प्रॉब्लम में भी देयर। तो अगर कोई उसको लगता है कि प्रॉब्लम है तो जो भी मैं लोन में कहीं लेने जा रही हूँ तो वो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक है, पैसों की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, पैसा आ सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, विल बी एबल टू रिकवर आवर मनी, तो दे विल बी हैप्पी, उनको कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं दिखेगी तो वो मुझे लोन सेंक्शन जल्दी कर देंगे मेरे लिए। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, दे विल कलेक्ट all such kind of information from the financial statements which have been prepared by the company.
ये हमारा कॉन्सेप्ट था सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं या जो हम प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, कस्टमर्स को दे रहे हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है मैन्युफैक्चरिंग। तो वेदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर्स, तो उसकी जो हमारी कॉस्ट है मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचने की, और सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड करने की, व्हाट एक्चुअली इज द कॉस्ट। ये जो है कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंटरनली ज्यादा यूज होगा, बाहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बाहर के लोगों को बताएंगे भी नहीं कि इतनी कॉस्ट है। वी नेवर टेल देम कि हाँ हमारी कॉस्ट इतनी है, हम इतने में बेच रहे हैं। उनको तो सिर्फ सेलिंग प्राइस पता होता है, या डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट पता होता है, कोई स्कीम है तो वो पता होती है, बट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट एक्चुअली द कॉस्ट इज। बट द मैनेजमेंट पीपल, द इंटरनली they are aware of what is the cost and they have to be they have to pay attention on this। अब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर मुझे पता है तो मेरे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते थे जो आप लोगों को, इफ यू रिमेंबर यू हैव स्टडीड दीज टू कॉन्सेप्ट विच इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, ये सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे इसमें। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जब हमारे अलग अलग तरीके की शीट्स हम बनाते हैं, तो इट्स बेसिकली यूजफुल फॉर द इंटरनल पीपल। इंटरनली वो कंपनी में ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो आप लोग एक्सटर्नल लोगों के साथ शेयर नहीं करते। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हमारे अकाउंट्स बनते हैं, इट्स मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू शेयर दोज अकाउंट्स विद ऑल द एक्सटर्नल पार्टीज ऑल्सो। तो जो जितने भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम उनके साथ उसको एनुअल रिपोर्ट्स में पब्लिश करके, हमारे मैंडेटरी होता है कि वी हैव टू पब्लिश द अकाउंट्स इन द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारी शीट्स बनती हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, वी डोंट शेयर इट विद द एक्सटर्नल पीपल। जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, हम उनके साथ कभी ये नहीं बताते कि मैंने 100 रुपये में बनाया, 200 रुपये में बनाया। हम उनको बाकी अमाउंट शेयर कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस बताएंगे, लेकिन हम वी डोंट शेयर द डिटेल द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इट्स बेसिकली ओनली फॉर द इंटरनल पर्पस। मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, व्हेन यू आर रनिंग इन द बिजनेस, द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें, तो इट्स बेसिकली प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम आगे डिस्क्लोज भी कर रहे हैं। आपको अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस याद हैं, तो उसमें आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस में फुल डिस्क्लोजर, ईच एंड एवरी डिटेल हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन वर्क विच इज यूजफुल इंटरनली। तो हम लोग उसको इंटरनल अपने पर्पस के लिए कि भाई मेरी इतनी कॉस्ट है। अब जाहिर बात है कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है हर कंपनी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? प्रॉफिट के लिए अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से हम वापस से बात करें, तो इट्स बेसिकली सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट मुझे बढ़ाना है, तो ईदर आई हैव टू इंक्रीज दी सेल्स, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, या मैं कॉस्ट कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, या दोनों काम हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी सेल्स बढ़ा सकती है, सेलिंग प्राइस बढ़ा सकती है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स हर जगह होते हैं, तो वो दोनों तरफ कोशिश करेगी। तो सिमिलर सेम टाइम पर वो कोशिश करेगी कि जो मेरा खर्चा है, वो जहाँ मैं वेस्टेज रोक सकती हूँ, जहाँ खर्चे मैं कम कर सकती हूँ, वो मैं कर लूँ। तो उसके लिए वी गो फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की एक्चुअल कॉस्ट है क्या, मुझे पता तो होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करूंगी। तो इट्स बेसिकली बेनिफिशियल फॉर द इंटरनल यूज। नाउ कमिंग टू द थर्ड मेन कॉन्सेप्ट और मेन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच वी हैव टू स्टडी इन दिस semester 6. Management accounting is basically concerned with accounting information which is useful to management. So it's basically we are talking of any kind of accounting information which is required by the management so that they can take different kind of decisions. अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कंपनी के मैनेजमेंट में जितने भी लोग होते हैं, उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या है, या जो जिस काम में वो लगे हुए होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं,
रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी में काम होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि काम क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, कोई काम हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये सारा का सारा काम आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कर रहे हो, आप लोगों पे कंट्रोल कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी बनाई तो उसको एग्जीक्यूट करना है, तो प्लानिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन भी है आपस में। अगर आपके पास अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यू हैव डिफरेंट डिविजन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हर किसी में आपस में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इतना आपके पास होता है तो उसमें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कामों के लिए आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पर आप इस तरह के डिसीजंस ले रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम आपको पता चलती है तो उसमें आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हो, सोचते हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं बहुत समराइज्ड वे में अगर आपको समझाया जाए, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली हम एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो एक ऐसा सिस्टम है ओवरऑल जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का क्लबिंग किया हुआ है, जहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस में। अब जो ICA है इंग्लैंड का, उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो डिफाइन किया है, दे हैव डिफाइंड इट एज एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच एनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली। अब जो मैं आपको बता रही थी कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, किसी भी चीज़ की आप बात करोगे, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। और ये सब काम ढंग से हों, अच्छे से हों, एफिशिएंसी के साथ हों, इफेक्टिवली ये सब काम हो, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। एंड देयरफॉर दे हैव डिफाइंड मैनेजमेंट accounting as any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently, where management accounting information system is going to help the managers in identifying problems, in solving them, and evaluating the performance of different kind of tasks which have been done in the organization. इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन किया है, दे हैव डिफाइंड इट एज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेलिवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू गो फॉर प्लानिंग प्रोसेस, कंटिन्यूसली प्लानिंग होती ही रहती है, रुकती नहीं है कभी भी। उसके बाद कंट्रोल होता है, प्लानिंग के बाद पूरा का पूरा उसका एग्जीक्यूशन होता है, कंट्रोल प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से मिलती है, उसके प्रोसेस से मिलती है। Management accounting has been defined as the integral part of management concerned with identification, presentation, and interpretation of the information which is used for formulating strategies. ये जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैनेजमेंट के लोग अगर स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे हवाबाजी नहीं हो जाएगी कि मेरे दिमाग में आया कि ये स्ट्रैटेजी बना दो, बस बन गई। एक डिसीजन लेने के लिए, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए कंपनी में कोई टास्क असाइन करना है मुझे कि ये काम होना है, तो उसको फाइनल करने के लिए कि ये टास्क होना है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, उसमें से कौन सा कराना है मुझे काम, और कंपनी में किस तरह से कराना है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसका यूज कैसा है, लोग कैसे हैं, एसेट्स कितने हैं, कैपिटल कितनी लगी हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी में काम होता है। तो जो आपके इस तरह के जितने भी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसमें
आपको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। आप जो अगर मान लीजिए फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है, तो यू विल बी रिक्वायरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल एनवायरनमेंट। उसमें अलग तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिएगी। प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए हिसाब से बात करोगे तो उसमें अलग तरीके की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ हेल्पफुल in all these kind of processes which are there in the organization at different point of time. तो आपको ये सब काम करने के लिए you need a different kind of information. Okay, one of you have asked me कि stakeholders और shareholders में क्या difference होता है. Okay, ओके आप लोगों के इट्स नॉट क्लियर। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, किसी ने कहा था, तो आई होप कि नाउ इट्स प्रॉपर्ली विजिबल टू यू ऑल। पहली चीज़, जो स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा आपकी कंपनी में शेयर्स के फॉर्म पे लगाया हुआ है। अब अगर आपकी कंपनी है और आपने पैसा बाहर से उठा रखा है कैपिटल का इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो आपने शेयर्स इशू किए होंगे। जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे उनका पैसा आपकी कंपनी में शेयर्स की फॉर्म में, कैपिटल का पैसा आपके बिजनेस में आ गया, तो आपने अपना ना लगाकर बाहर से पैसा शेयर्स के फॉर्म में लगा के कैपिटल रेज कर रखी है। मैं अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मेरे पास पैसा था, मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो मैं शेयर होल्डर बन गई, तो मेरा भी कुछ ना कुछ से है आपकी कंपनी में, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट विच हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय मी इन योर कंपनी। मैं कितने रुपए की कितने कैपिटल, मतलब मैंने कितना शेयर में पैसा लगा रखा है अपनी कंपनी का आपकी कंपनी में, उसके हिसाब से मेरी उसमें से है, वोटिंग राइट्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स यू मे हैव। तो ये जनरल है कि मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया शेयर्स के फॉर्म में। अब जब मैंने पैसा लगाया, तो फ्रॉम माय एंगल, मैं किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगाऊंगी तो मुझे रिटर्न की उम्मीद होगी, तभी पैसा लगाऊंगी, वरना नहीं। अब रिटर्न मुझे कैसे कैसे मिल सकता है? एक, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी रेशो बहुत अच्छी है, कंपनी डिविडेंड देती है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने पैसा लगा दिया, इस कंपनी के शेयर्स ले लिए मैंने, और डिविडेंड मिलेगा तो आई विल बी एबल टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा। जो मैंने लगाया है उसमें डिविडेंड मुझे मिलता रहेगा, जो भी जितना कंपनी हर साल अनाउंस करेगी। दूसरा ये ऑप्शन है कि मुझे ये लगता है कि आज इस कंपनी का शेयर 150 रुपये का है, लेकिन मुझे ये फीलिंग है कि ये कंपनी का शेयर 200 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये हो सकता है, मतलब देयर मे बी एन इंक्रीज एज पर माई गट फीलिंग। मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके शेयर के प्राइसेस जो आज 150 हैं, इट में गो टिल 300 400, इट में इंक्रीज टू वट एवर लेवल इज। तो मैं उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहती हूँ, तो आज मैंने 150 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, 150 रुपये में शेयर्स ले लिए, उसको 300 रुपये का हुआ, 300 रुपये में बेच दिया, 200 रुपये में बेच दिया, और मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया। यही दो तरीके हैं आप एज शेयर होल्डर पैसा अर्न कर सकते हो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके। वो होता है शेयर होल्डर। उसका इंटरेस्ट कितना है? सिर्फ उतना ही है कि मुझे रिटर्न कब मिल रहा है, कितना मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। ईदर आई एम गेटिंग रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और the market price of the share is going to increase or it has already increased। मैंने पहले कभी लिए थे और आज बढ़े हुए हैं और मैं उसको बेच के पैसा कमा रही हूँ। ये दो तरीके हैं, ये कॉन्सेप्ट है पूरा शेयर होल्डर का। स्टेक होल्डर की मैं अगर बात करती हूँ, तो स्टेक होल्डर में सारे लोग आ जाते हैं जिनका कोई भी इंटरेस्ट कंपनी में किसी भी तरीके का छोटा बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो इन केस एनी पर्सन हु और एनी ऑर्गेनाइजेशन who is having any kind of interest in a particular company, they fall in the category of stakeholders। उनको कहीं नुकसान हो सकता है, कहीं फायदा हो सकता है, उनकी कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है। तो शेयर होल्डर, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपने अगर किसी कंपनी में, तो आप शेयर होल्डर हो। दूसरा, हो सकता है किसी ने पैसा इन्वेस्ट नहीं भी किया है, लेकिन वो स्टेक होल्डर है। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं, तो क्रेडिटर्स मतलब मेरी लायबिलिटी है कि मैंने लोन लिया किसी से और मुझे वो पेमेंट करनी है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी दिखाऊंगी। ही इज ऑल्सो द स्टेक होल्डर ऑफ माई कंपनी।
उसको मैंने उसे 2 लाख रुपए लोन के लिए रखे हैं, बिजनेस में लगा रखा है, मुझे उसको 2 लाख रुपए वापस देने हैं, तो ही इज ऑल्सो स्टेक होल्डर कि उसका कोई ना कोई मेरी कंपनी में इंटरेस्ट है। अब मेरी कंपनी अगर दिवालिया हो गई तो उसके पैसे कहाँ से दूंगी, उसको टेंशन रहेगी। तो एनी वन हु इज इंटरेस्टेड in my company somehow with some or the other reason is the stakeholder, not the shareholder. shareholder मतलब कोई इन्वेस्टर है जिसने शेयर्स के फॉर्म में पैसा लगाया हुआ मेरी कंपनी में। स्टेक होल्डर कोई भी वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसका मेरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट है। ये दो ये आपका इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। Now coming to the process of management accounting, National Association of Accountants, USA, they have defined management accounting as the process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, and communication of financial information which is used by management to plan, evaluate, control within the organization and to assure the appropriate use and accountability of its resources. इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग कोई सी भी आप पढ़ लो, सारे प्रोसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा प्रोसीजर होता है। अभी किस चीज़ का प्रोसेस है? जहाँ पर कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो डिसीजंस लेना चाहती है, वो प्लानिंग करना चाहती है, वो परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, कोऑर्डिनेशन में मैनेज करके रखना चाहती है। हमारे जो कंपनी में रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन से रिगार्डिंग वो उनका फोकस है कि रिसोर्सेज कितने हैं, उनको हम प्रॉपरली एलोकेट कर रहे हैं या नहीं, वेदर देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और नॉट। तो ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अब मैंने कह तो दिया कि भाई मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कहाँ से आए, रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्सेज कब कहाँ कितने कैसे यूज होंगे ताकि बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की, वेस्टेज ना हो। हर चीज़ में पैसा लगता है, वेस्टेज नहीं हम करना चाहते। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिसमें हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जहां हम क्या कर रहे हैं? वी आर आइडेंटिफाइंग, we are measuring, we are accumulating, analyzing and preparing the financial information. तो जो भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्लब कर देते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं एक पर्पस के लिए जो हमारा है मैनेजमेंट को हेल्प करना। तो एक सिंपल सी लाइन में अगर समझाया जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा एक वो प्रोसेस है जहां हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, टेक्निक्स को यूज करते हैं और वो सब काम इंटरनल लेवल पे होता है ताकि हम मैनेजमेंट को हेल्प कर सकें कि मैनेजमेंट जो भी काम करेगी, जो काम कर रही है वो अच्छे से कर पाए, उसको हेल्प करें हम कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाए। हम अगर मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो वो फिर आगे डिसीजंस उसके हिसाब से लेंगे कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी में मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया रैंडम, अपनी मर्जी से, मेरा मन कर रहा है मैंने डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसका एग्जीक्यूशन जब हो रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन के बाद इम्पैक्ट क्या है, लोग उससे कितना खुश हैं, लोगों को उसके बाद जब एग्जीक्यूशन हो रही है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेदर दे आर हैप्पी विद दैट डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट और नॉट, वो फीजिबल है भी कि नहीं है, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूशन के बाद हमें देखना पड़ेगा। देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आप लोग कॉलेज में आ गए, स्कूल से निकले, स्कूल टाइम तक सबकी स्कूल ड्रेसेस होती थी। अब आप एकदम से जब स्कूल छोड़ के कॉलेज में आए तो कॉलेज में यू नो कि कहीं पे भी ड्रेस कोड नहीं है आप लोगों के साथ। ओके, डिस्प्ले ठीक नहीं आ रहा है। Okay, I'll just zoom it out. Now just check whether the display is clear or still it's blurred. Okay. मान लीजिए मैं आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल जो अभी दिमाग में आया। आप लोग स्कूल से निकले, कॉलेज में आ गए।
कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी डोंट हैव एनी ड्रेस कोड, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में कहीं कहीं होता है, लेकिन अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके अगर कॉलेज की बात करूँ, आप अगर मान लीजिए रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल से निकले जहाँ ड्रेस कोड था, कॉलेज में आए ड्रेस कोड नहीं है, टाइमिंग्स की कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से आप बाहर नहीं निकल सकते थे। यहाँ आप कॉलेज में, आप जब क्लास में जाना चाहो जा सकते हो, नहीं जाना है नहीं जा सकते हो, कोई ड्रेस कोड नहीं है, रोका टोकी कम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना ये एक माइंड में रहता है, वो बोले या ना बोले, एक दिमाग में एक रहती है बात कि यार अब तो हम कॉलेज में आ गए, कॉलेज में तो ऐश है, इन द सेंस कि वी डोंट हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड, वी डोंट नीड टू बी देयर इन एवरी लेक्चर। अगर हम मिस करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉलेज से जब बाहर वापस निकलना चाहें हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा 8 बजे से 2 बजे तक का स्कूल था तो हमें स्कूल में ही रहना था, हम बाहर निकल ही नहीं सकते थे। कॉलेज में तो जब आना चाहो आ जाओ, जब जाना चाहो चले जाओ, थोड़ी सी फ्रीडम होती है। साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट आप लोगों के दिमाग में एक अलग तरीके का रहता है। स्कूल लाइफ अलग थी, कॉलेज लाइफ अलग थी। अब यहाँ पर आपने 2 साल निकाल दिए, किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसिपल का दिमाग घूम जाता है। मैं ये नोटिस लगा देती हूँ कि अब कल नेक्स्ट वीक से ड्रेस कोड लागू हो रही है, इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने डिसीजन, बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे ये लगा, मेरी पर्सनल फीलिंग ये थी कि ड्रेस कोड शुड बी देयर, मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। कितना आप लोगों को खुद आप सोचिए, नो नीड्स टू नो आंसर इट इन द चैट बॉक्स, बट आप खुद ही सोचिए कि कितने एक्चुअली, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से कितने स्टूडेंट्स इस चीज़ को सही से एक्सेप्ट कर लेंगे एकदम से कि हाँ ये मैम ने जो डिसीजन लिया ना बहुत बढ़िया है। आई डाउट कि बहुत ज़्यादा होंगे ऐसे, कुछ ही होंगे अगर होंगे तो, वरना सबका रिएक्शन पहले यही आएगा कि ये क्या है, अब ये कोई स्कूल है, इस तरह के रिएक्शंस आएंगे कि ये कोई स्कूल थोड़ा ना है, अब तो हम कॉलेज में आ गए। क्यों? क्योंकि एक माइंडसेट हो गया। तो यहाँ पर भी जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अब मैंने अगर ये इम्प्लीमेंट किया और ऑप्शन दे दिया तो बात अलग है, बट आपके साथ क्या होगा कि आप ये सब काम अगर करना पड़ेगा तो मजबूरी में करोगे, ड्रेस में जाना पड़ेगा। अभी तो हम अपने 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 हिसाब से कर रहे थे, अब यहाँ पे भी स्कूल की तरह वी हैव अ ड्रेस कोड, तो एक सिस्टम है पहले से ही है, तो माइंडसेट बना रहता है। एकदम से चेंजेस आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग आ सकता है। अब हो सकता है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप रजिस्ट कर दो कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो कोई भी कंपनी में, बिजनेस चलाना आसान नहीं होता है। कंपनी में अगर हम डिसीजंस लेते हैं तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, थ्योरेटिकली वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स, या हम सोच रहे हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे यू मे नॉट get any kind of problem, but you may face different kind of problems. एग्जीक्यूशन के टाइम पे सही पता चलता है कि अब एक्चुअली काम हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब डिसीजंस ले लेता है, उसकी जब एग्जीक्यूशन कर लेता है, प्लानिंग करने के लिए भी उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए भी उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जब वो मेजरमेंट हो जाएगी, इवैल्यूएट होगी उसके बाद कि भाई ये ठीक है, ये खर्चा होना था, ये खर्चा इतना क्यों हुआ, कोई वेरिएशन है तो क्यों है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट बनाना है एक, मुझे ये पहले से मैंने एक बजट बनाया, 1000 रुपये में ये प्रोडक्ट की 1 यूनिट मेरी बन जाएगी, ये मेरी एक एस्टिमेशन थी। बजट है तो एस्टिमेशन है, इसका मतलब जब ये तो प्लानिंग हुई, एक प्रोसेस है that I'm going to manufacture this particular product which will cost me 1000 rupees per unit. 1000 रुपये में प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट में बना पाऊंगी। दिस इज ओनली द प्लानिंग प्रोसेस, जहां पर मैंने बजट्स पहले फोरकास्ट किए कि मैं ये काम करके ये प्रोडक्ट बना रही हूँ, प्रोडक्ट ए, जिसके लिए मुझे 1000 रुपये बेयर करने पड़ेंगे 1 यूनिट के लिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, प्लानिंग। इसके लिए भी मुझे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस शुरू हो गया प्रोडक्ट बनने का, खर्चे एक्चुअली होने लगे। खर्चे जब एक्चुअल होंगे तो मुझे ये देखना, वो तो मुझे बेयर करने ही पड़ेंगे। अब उस टाइम पे मेरे पास 2 फिगर्स आ गए, एक 1000 रुपये इन टोटलिटी जो मैंने पहले से एस्टिमेट लगा के रखा हुआ था कि इतना खर्चा मेरा हो सकता है या इतना खर्चा होगा। अब एक्चुअली 1000 हुआ तो इसका मतलब मेरी प्लानिंग बहुत ही बढ़िया थी कि जितना मैंने समझा था, जितना मैंने सोचा था या मैंने प्लान किया था, बजट के हिसाब से एस्टिमेटेड फिगर थी,
वो ही एक्चुअली खर्चा हुआ। हो सकता है उसमें वेरिएशन हो, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन तो चल जाएगी कि 1000 के 950 रुपये हो गए, 1050 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 1000 के 2000 हो गए, 1000 के 500 हो गए, या 1000 के 800 रह गए, तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा हो गई। तो थोड़ी बहुत वेरिएशन तो चल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं चलती है। अब बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन है तो फेवरेबल है या वो एडवर्स है। यानी 1000 रुपये में मैंने सोचा वो 1500 में बना, तो मुझे टेंशन हो जाएगी ये 500 रुपये एक्स्ट्रा कैसे खर्च हुए। मैंने अगर 1000 का हिसाब लगाया था तो वो भी सोच समझ के लगाया था, 1500 रुपये खर्च हुए, वो मुझे करने पड़े, मैंने किए भी, लेकिन ये 500 का डिफरेंस क्यों आया। तो मैंने क्या किया, जो मेरी प्लानिंग थी वहां पे मेरी प्लानिंग कहाँ रुकी, 1000 रुपये की कैलकुलेशन तक। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मैंने मेजर किया कि मुझे पता चल गया 1500 रुपये में प्रोडक्ट बना इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फिगर्स कि मैंने 1000 में क्या क्या लिया हुआ था कैलकुलेशंस में, और एक्चुअली में जो 1500 खर्च हुआ है उसमें 1500 खर्च किस किस चीज में कितना हुआ है। और फिर मैं उनमें वेरिएशन देखूंगी कि ये 500 का जो डिफरेंस है इन टोटलिटी, वो डिफरेंस किस किस चीज की वजह से डिफरेंस है, और फिर उसकी इवैल्यूएशन करके एनालिसिस करूंगी। ये 500 रुपये में से 200 रुपये इस चीज़ के एक्स्ट्रा हो गए, 100 रुपये इस चीज़ के एक्स्ट्रा हुए, 40 इसके हुए, 60 इसके हुए। इस तरह से मैं उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करके ये चेक करूंगी कि कितना खर्चा जो डिफरेंस आया 500 रुपये का, वो कहाँ कहाँ किस किस वजह से आया, और जिन जिन रीजंस की वजह से वो डिफरेंस आया उसमें से क्या कोई ऐसा खर्चा था जो मैंने गलती से मिस किया अपनी प्लानिंग के टाइम पे, जो मैंने बजट बनाया था उस टाइम पे कोई मिस हुआ, तो मैं क्या करूंगी, अगली बार जब बजट बनाऊंगी तो उसका ध्यान रखूंगी, वो पहले ही ऐड कर दूंगी। क्योंकि डिफरेंस जितना कम होगा, 1000 और 1500 में 500 का डिफरेंस है, ये मिनिमम होना चाहिए, और ना ही हो तो बेस्ट है। तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो चल जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब फंड्स की मैं बात करती हूँ, पैसा कहीं खर्च हो रहा है अगर, तो मुझे फंड्स अरेंज भी करने पड़ेंगे। तो अगर मैंने कम पैसे अरेंज कर रखे हैं तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शॉर्टेज अगर हो गई तो प्रॉब्लम है, खर्चे करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। और सरप्लस हो गया तो भी नुकसान है, क्योंकि अगर सरप्लस में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो मैं उसकी बजाय के इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न कर सकती थी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन which is being gathered from the whole concept or the process which is known as management accounting। ये सारी जितनी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए अपने अलग अलग काम करने के लिए, वो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है अकाउंटिंग की, जहाँ पर वी आर टॉकिंग ऑफ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा टू द मैनेजर्स, जो कि पूरे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन के, इट्स बेसिकली इन द डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। वो अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं, अलग अलग लेवल के लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं, मैनेजरियल लेवल बहुत सारे होते हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग काम वो कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होती है। एनालिसिस के बाद उसमें वेरिएंस एनालिसिस हम कर देते हैं कि डिफरेंस है तो क्यों है, और फिर हम रेमेडियल एक्शंस या स्टेप्स को कंसिडर करके सोच के कि क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है कि दिक्कतें कम से कम हो। ये सारा प्रोसेस हमें पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में। आई होप कि थियोरेटिकल जो एक मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, या हम उसमें करते क्या हैं, ये आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि सेकेंड हैंड बुक परचेज कर सकते हैं क्या। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं, आप सेकेंड हैंड बुक परचेज कर सकते हो इजीली, नो इश्यूज। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस आ सकता है क्या। तीनों में तो नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। एक ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप डिटेल में कहोगे तो विल डिस्कस इट इन द क्लास ऑल्सो। अमित, आज वाला जो सेशन है, आज वाले क्लास में
सेशन तो लखवीर ऑलरेडी चल रहा है, क्लास तो आपकी चल ही रही है ऑलरेडी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज वाली क्लास में नहीं होंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट डिस्कसिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में सारा थ्योरेटिकल बेस ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, वेयर वी टॉक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ से प्रॉफिट या लॉस की फिगर पता चलती है, और बैलेंस शीट। और कॉस्ट अकाउंटिंग में वी हैव द फोकस ऑन द calculation of cost along with the cost reduction and cost control concept, so that we can have the maximum efficiency and effectiveness in order to enhance the profit. Or management accounting means basically the concept of providing information or data to the management, so that they will be the information they can use in the whole process of planning and decision making process, thereby controlling the whole mechanism in the organization. Okay, now coming to the nature of management accounting, it's basically मोटा मोटा हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया है, but coming to the characteristics or nature of management accounting, it's the first one is it's useful in decision making process, where we say that the management accounting's main motive is to help the management in the whole process of decision making and controlling process, and it is done by providing different kind of information which is being required by the management to have to finalize the decisions and to implement the controlling techniques पूरा control करने के लिए. So it's basically the foremost, the first and major characteristics or advantages you can say of management accounting is that it is beneficial in the whole process of decision making. Next is financial and cost accounting information. इसका में क्या है कि जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग की बात करते हैं, वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो बेसिकली मिलती कहाँ से है, वो हमें उन अकाउंट से मिलती है जो हम बना चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हमने बनाए होंगे, जो भी हमने स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होकर समरी में या डिटेल्ड वर्जन जैसी भी रिक्वायरमेंट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रोसेस में मैनेजमेंट के साथ शेयर की जाती है. Then the third nature or characteristics is it's for internal use only. मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया है कि whatever the information is being provided by anyone to the management people, it's basically for the internal use, and it's not shared with the external parties like shareholders, creditors, bank. Internally कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है कि मैंने कितना खर्चा किया, कहाँ किया, कैसे किया, वो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इंटरनली होती है शेयर. आउटसाइडर्स के साथ हम ये इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज इट्स प्योरली ऑप्शनल. like when we talk of financial accounting में the preparation of accounts and its disclosure in the annual reports is mandatory, but when we talk of management accounting, it's not it's not a regulation, it's not mandatory for you to go with these concepts or the process. It's basically depending on your thinking, कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करना है क्योंकि मुझे फ़ायदा होगा, तो फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. अदरवाइज कोई मैंडेटरी मेरे लिए नहीं है कि आई हैव टू गो विद ऑल दीज प्रोसेसेस, बट नो डाउट इट्स बेनिफिशियल, and therefore every company is having such kind of environment where the techniques are being used. Then it's concerned with the future. It's basically when we talk of the whole decision making process, तो डिसीजन हम आज ले रहे हैं लेकिन कब के लिए ले रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए. तो अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम के लिए है, डिसीजंस ले रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए हैं. तो इट्स बेसिकली मोर और लेस बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स और द पास्ट, जो भी हुआ है उसके बेसिस पर हम आज डिसीजन लेते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए, जो कि हमें लगेगा
कि हाँ हमने एनालिसिस की है, पूरी रिसर्च की है, हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी एनालिसिस की हुई है, जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर के डिसीजंस ले रहे हैं। तो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, previous data, analysis of that, but it is concerned with future. हम सोच आगे का रहे हैं, पिछला नहीं सोच रहे। जो हो चुका वो हो चुका, आगे के लिए पिछली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आगे का सोच के फाइनल हम करते हैं कुछ भी। Next one is flexibility in the presentation of information. Like it's not mandatory to follow the management information system. जैसे अकाउंट्स में अकाउंट्स मैंडेटरी हैं, तो उसमें फॉर्मेट भी है कि हमें इस फॉर्मेट पे अकाउंट्स बनाने हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो इफ इट इज शेयर्ड, it's basically shared in the way or the format whatever is being required by the management people. No rule is there कि हाँ ये फॉर्मेट है, इसी में ही हमें शेयर करना है, ऐसा नहीं होता है। तो प्रेजेंटेशन आप किस तरह से दे रहे हो उसकी, it totally depends on the requirement of the management, what type of information is being required and how they want it to be presented to them. Okay, next one is the scope of management accounting. It's basically it's a wider concept than your financial accounting and cost accounting. यहाँ पर जो आपके financial accounting है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे जो कि हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं, वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ फ्यूचर हम डिसाइड करने के लिए वो सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो किसी भी एक अच्छे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए इट्स रिक्वायर्ड that when we design the financial accounting system, it should be properly designed so that you have proper accounts which can be used by different people in the organization in the whole concept of management accounting system. Similarly, you have different techniques in cost accounting जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होती है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये सब टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी। देन यू हैव बजटरी एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स which play a very important role in the whole concept of management accounting. क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर को पहले फोरकास्ट कर रहे हैं ट्रेंड बेसिस पे, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर कि हमारी कंपनी के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, हमें क्या काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हम बनाएं जिनसे हमें कंपनी में फ़ायदा होगा। तो बजट अगर हम बना रहे हैं तो किस टाइप के बजट्स हम बनाएंगे, हाउ दीज बजट्स विल हेल्प अस इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीज़ों के लिए वी नीड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बेस दिस इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, टैक्स प्लानिंग इज बेसिकली वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ income or different kind of taxes which we needs to pay depending on the situation or the organization. तो अलग अलग तरीके की टैक्स लायबिलिटीज आ जाती हैं। अब उसमें क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट लॉज, वी हैव डिफरेंट प्रोविजंस वेयर वी कैन बी एट एडवांटेजियस पोजीशन कि हम अपने टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें, टैक्स लायबिलिटी को कम कैसे करें, बचा कैसे लें अपना पैसा। तो उसमें हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं पहले से ही, क्योंकि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन को भी पहले से जज करने की कोशिश कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, तो हम उसमें ये भी हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है आगे। उसके बेसिस पर हम पहले से सोच के चल सकते हैं कि व्हाट ऑल टेक्निक्स विच वी आर देयर विच वी कैन यूज और वेयर वी कैन सेव आवर मनी और वी कैन मिनिमाइज आवर टैक्स लायबिलिटी। तो हम कैसे सेविंग्स करें, कितना पैसा सेव करें, किस तरह से करें जो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट।
It's basically, when we talk of management accounting, it's basically the reporting to management. One of the main work it's there in the management accounting. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करके इंफॉर्मेशन देना, उनके साथ डेटा शेयर करना, it's basically the main task which is there in the management accounting. Next is control of cost technique. You have different kind of techniques and procedures which can be used or which can be implemented in the organization so that we can control the cost. अब हम कंट्रोल करने के लिए खर्चा हम कम करेंगे तो हमारा उसकी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या तो सेल्स बढ़ाएं या कॉस्ट कम करें. कॉस्ट कम करने के लिए वी आर टॉकिंग ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, वेयर वी हैव डिफरेंट प्रोसीजर्स लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल. ये हम लोग सारे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट को रेगुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स. अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स like graph, table, charts, statistical tools are also used to have the analysis process. जो भी हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो एनालाइज करने के टाइम पर वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, वी हैव डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी सो दैट दे कैन मेक द कंपैरिजन. तो अगर मैं फोरकास्टिंग की भी बात करूँ तो फोरकास्टिंग के लिए हम बात करते हैं कि पिछले ऐसे ट्रेंड रहे हैं तो वो ट्रेंड एनालिसिस हम कर लेते हैं, तो उसके लिए हम चार्ट्स बना देते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है. तो इस तरह से यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स विच आर बीइंग यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स विच इज़ यूज्ड बाय द मैनेजमेंट. तो अगर मैंने उसको समराइज करके चार्ट के फॉर्म में दे दिया, टेबुलर फॉर्म में दे दिया, ग्राफ की फॉर्म में दे दिया, तो मैनेजमेंट को वो समझने में टाइम बहुत कम लगता है. तो टाइम बच जाता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, एकदम से उसका अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है. तो द इंफॉर्मेशन कैन बी समराइज्ड इन सच काइंड ऑफ वेज एंड दे कैन बी प्रेजेंटेड इन दीज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा can be presented in form of graph, tables, which can be easily used by management in a very short span of time. Next is internal control and internal audit, where we are talking of the controlling mechanism in the organization by just gathering different kind of information from the whole environment. ये आपके सारे के सारे scope के बाद. अब now coming to the functions or the objectives में I'm just going through it. We have already discussed these points. In general, the main functions of management accounting is the planning process. Planning process का क्या मतलब है कि when we are going for the whole planning process कि हमें क्या planning करनी है, कि काम किस तरह से कराना है, you have different kind of techniques in management accounting. For example, you have techniques of budgetary and budgetary control, standard costing, marginal costing, cost volume, profit analysis. All these kind of techniques are being used in management accounting so that the management, they can have a proper process of forecasting. They can have a better formulation of strategies. और अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हमें कब क्या कराना है, कैसे कराना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, तो वो पूरी जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में जो इन्फॉर्मेशन या डेटा चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज द इंफॉर्मेशन whatever we are collecting from different sources, it is being used by management accounting in the whole process of planning, along with the process of coordination, controlling, communication, the analysis of the data, interpretation of the data, which can be beneficial for the company. अब coordinating की अगर मैं बात करूँगी तो जो management accounting की techniques हैं, they help in the coordination of different kind of activities in the organization. For example, when we are talking of different departments, we have production department, sales department, purchase department, production department, finance department, HR department. बहुत सारे departments हैं. अब सारे डिपार्टमेंट इकट्ठा काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, जो गोल है कंपनी का, उसको अचीव करना चाहते हैं. हर कोई उसके लिए काम कर रहा है.
तो सब में आपस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप जो टारगेट को सेट करके बैठे हुए हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव ढंग से नहीं कर पाओगे, या तो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे या आप ठीक से अचीव नहीं कर पाओगे। Next one is controlling. Controlling is another important function of management accounting, which is basically helping in the control performance using different kind of techniques, which we have to study is standard costing, budgetary control, control ratio, internal audit. ये बहुत सारे तरीके की टेक्निक्स होती हैं अवेलेबल, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं एक कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए. So we'll be at the advantageous position if we have all, if we implement all such kind of techniques in the organization. Then one of the important, process is the communication process. Now, when we talk of the management accounting system, it's basically collecting different kind of information from the whole system, and it's being shared with the management people, which which basically take decisions on the basis of the information being provided to them. तो जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इट्स बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, it's recording of these kind of information, and the report is being prepared, which is presented to different managerial level or the people who are involved in all such kind of management और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, मैनेजमेंट कम्युनिकेट करना है अलग अलग लेवल्स पे कि उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ताकि ओवरऑल में जब हम बिजनेस के फंक्शनिंग की बात करें तो उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो. Next is financial analysis and interpretation, where we are talking of the data which has been collected. Financial data we are talking of. Financial data is being collected. It's analyzed. It has been interpreted using different kind of techniques, where we talk of the analysis and interpretation. Apart from this, the presentation should be in such a way that it's easily understood by anyone. So where we talk of financial analysis and the interpretation, we are talking of the ratio analysis. We are talking of different kind of statements like cash flow statement, fund flow statement, trend analysis क्या है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं डेटा की एनालिसिस करने में. Next is okay, we have done the tools and techniques which are used in management accounting. ये आपको स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको इतने 16 टेक्निक्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, which is ओके. वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि सिलेबस में ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हुए हैं और वो आ सकते हैं क्या पेपर में. देखिए, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो आप लोगों को पढ़ना है तो वहाँ पे अगर डिटेल में ऑब्जेक्टिव में लिखा नहीं भी हुआ है तो भी आपको पढ़ना तो है ही, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर यू कैन ईजिली इन केस यू नो द कॉन्सेप्ट, तो ऑब्जेक्टिव सिलेबस में है या नहीं है, दे कैन आस्क द ऑब्जेक्टिव्स एंड यू कैन ईजिली राइट इट. Okay, now these are the important tools and techniques which are available in the management accounting process, which is talking of the budgeting, standard costing, variance analysis, marginal costing, cost volume profit analysis, ratio analysis, comparative financial statements. You have differential cost analysis, fund flow statement, cash flow statement, responsibility accounting. बहुत ये 16 की लिस्ट है जिसमें से हमें जो पढ़ने हैं अभी मेन वो आपको बजटिंग पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस हमें पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्टिंग विद द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वी हैव टू स्टडी, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव टू गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टू सर्टेन एक्सटेंट. बाकी सब हमें नहीं पढ़ने हैं, दो दे आर important tool and techniques. Some of these techniques we have to study in depth. Okay, now you asked me कि cost accounting और management accounting में अगर difference आ जाता है या आ सकता है. No doubt कि syllabus में है, concepts आप पढ़ रहे हैं तो they can ask you any question they want. पेपर सेटर अब आपसे
क्या चीज़ जानना चाहते हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में। Okay, now the difference between cost accounting and management accounting, ये basically हम लोग just give me a minute please, I am getting an urgent call. Okay, sorry for this interruption. Now coming back to the concept of cost accounting and management accounting. Cost accounting is basically where we are gathering the information of the cost we have incurred in the manufacturing process of the product or rendering of services. हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमने कितना खर्चा उठाया है, कितनी कॉस्ट इनकर की है, और अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के टाइम पर हमने कितना कॉस्ट बियर किया है. दिस इज बेसिकली वी डू इन कॉस्ट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आता है, तो वो उससे ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है, जहाँ पर वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, and the information is being shared with the managerial people so that they can take different kind of decisions. ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजंस के है इन दोनों इंटरनल. ये कॉमन है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों ही इंटरनली यूज हो रही है, मैनेजेरियल यूज हो रहे हैं दोनों के. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है टू it's limited to the cost of the manufacturing of the product or providing the services to the customers. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसके अलावा में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन भी होती है. कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मेन फोकस है हमारा, जो अटेंशन है, एम्फेसिस जो है, इट्स बेसिकली ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट विच वी हैव incurred or which we are going to incur along with the cost control concept, ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें. जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बात करते हैं तो इट्स बेसिकली द फोकस और द अटेंशन इज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सो दैट the strategies, decisions which are being taken by the management, they play a very important role. And अगर हमारा एक डिसीजन गलत हुआ, कोई हमने प्लानिंग गलत कर दी, कोई डिसीजन गलत कर दिया, कंट्रोल हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो हमें नुकसान हो सकता है, तो हम वो नहीं चाहते. तो हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, सारी की सारी चीज़ें इतनी सही, इतनी एफिशिएंटली हम करना चाहते हैं कि हमें कोई भी नुकसान ना हो. क्यों? क्योंकि अगर डिसीजन अच्छा होगा, डिसीजन सही होगा, तो हमारा प्रॉफिट अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो दोनों में ही मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो है, हर कोई चाहता है कंपनी में कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लेकिन उसको करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, सही प्लानिंग करना चाहते हैं. तो दोनों में कॉन्सेप्ट या तरीके जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं.
कॉस्ट अकाउंटिंग में क्योंकि जो एम्फेसिस है इट्स बेसिकली ऑन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट अलोंग विद द कॉस्ट कंट्रोल, तो you have different kind of techniques which are being used by the cost accountant. For example, you have standard costing, variance analysis, marginal costing, cost profit analysis, budgetary control you have, so that you can have the proper working in the organization. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सारी टेक्निक्स हैं, इसके अलावा में और भी टेक्निक्स होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टेक्निक्स होती हैं, और अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस होती हैं या पूरा का पूरा एनालिसिस होती है इन सब इंफॉर्मेशन की जो हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलती है. तो इट्स बेसिकली कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, इवोल्यूशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट आया कॉस्ट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब आया? जब कॉस्ट अकाउंटिंग की भी हमें कुछ कमियां महसूस हुई कि हाँ इसमें भी अभी इन डेप्थ हम नहीं पहुंचे हैं, इसमें भी ये लूप होल्स हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. तो इवोल्यूशन के हिसाब से बात करोगे तो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन दी होल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज टू are there in the management accounting. Statutory requirement में as I told you earlier also कि जो cost accounting में records maintain हो रहे हैं वो कुछ industries में गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में मैंडेटरी किया हुआ है, कुछ में वो मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ कुछ में मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज कंपल्सरी एज पर द लॉ. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो मैंडेटरी नहीं है. इट्स टोटली वॉलंटरी, इट्स टोटली ऑप्शनल कि अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, कि आपको लगता है कि फ़ायदा होगा तो आप करिए, नहीं तो नहीं करिए. तो इट्स टोटली ऑप्शनल whether you want to go for the concept of management accounting or not. डेटाबेस की जब हम बात करते हैं कि हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हमें क्या डेटा चाहिए, उसके लिए when we talk of cost accounting, तो it's basically the data which has been derived, it's derived from the financial accounts. तो हम financial accounts से डेटा उठा के इन डेप्थ जाते हैं कि ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल के साथ में कैलकुलेशंस हमने कर दी है. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या बाकी और सोर्सेज हैं वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए. इट कैन बी फाइनेंशियल डेटा, इट कैन बी अदर डेटा विच मे हैव इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी. स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में इफ़ वी टॉक ऑफ, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कॉस्ट अकाउंटेंट अगर हायरार्किकल लेवल की हम बात करते हैं तो ही इज प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल as compared to the management accountant. Management accountant is placed at a higher level in the hierarchy as compared to the cost accountant. क्यों? क्योंकि वो directly management से deal कर रहा है, management के लिए काम कर रहा है directly. He is responsible for the collection of the data, information from different sources, analyzing it, interpreting it and presenting it to the management who is involved in the whole decision making process. तो इसलिए cost accountant से ज़्यादा higher level पे उसको hierarchy में रखा जाता है. Now coming to the limitations, अब फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं. नुकसान में अगर हम बात करें, limitations की अगर बात करें, apart from all the advantages of management accounting, you have limitations of the management accounting, and the first and foremost is इट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. तो अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं, तो ट्रेंड के लिए भी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. वो हमने कहाँ से ली? पिछला क्या हुआ था, पिछले क्या हुआ था. तो हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा की. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज इन द होल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग जो हम आगे के लिए कर रहे हैं, अगर हम फोरकास्टिंग की भी बात कर रहे हैं तो वी नीड टू हैव द हिस्टोरिकल डेटा जो काम ऑलरेडी हो चुका है, और उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर हम आगे के फ्यूचर के डिसीजंस को सोचते हैं, इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं कि भाई ये डिसीजन होना चाहिए, ये काम ऐसे होगा आगे से. अब आगे काम ये वाला डेटा इस तरह से हमने यूज़ किया. तो बेसिकली जो हम डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. तो अब हिस्ट्री जो पिछला हो चुका, ज़रूरी थोड़ा ना आगे भी वैसे ही होगा. तो एक्यूरेसी 100% हम नहीं कह सकते
कि 100% एक्यूरेसी होगी, और जो काम हो चुका है आगे भी उसके हिसाब से ही होगा, वैसा ही होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इट्स बेसिकली एक लिमिटेशन है that it's based on the historical data, and we are on the basis of history yeah past data we are forecasting the future which may not be 100% accurate. इसके अलावा में लैक ऑफ वाइड नॉलेज का एक लिमिटेशन आ जाता है when we talk of the persons who are involved in this whole process of management accounting information system, where we are talking of the management accountant and his team. He should be aware of the concepts of financial accounting as well as cost accounting. Apart from these two concepts, he should be aware of the concepts of economics, management, taxation also, statistical and mathematical techniques we may use in the data analysis. तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो या सारी की सारी नॉलेज हो। आपने सीए की हुई है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट की आप बात कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर सकते हो कि हाँ मैं डेटा को एनालाइज कर सकती हूँ। आपको हो सकता है इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नॉलेज ना हो इकोनॉमिक्स की, हो सकता है आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स ना यूज़ करने आते हो। तो इट्स नॉट an easy task that a single person is capable or he is aware of all these concepts or subjects in a very well manner. मतलब बहुत अच्छे, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया होना और एक बहुत डेप्थ में एक अपने यूज़ के लिए कंपनी के काम के लिए बहुत डिटेल्ड नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है. इट्स वेरी difficult for anyone to have a wider knowledge of all these subjects which will be beneficial in the management accounting concept. Then it's a very complicated approach because different kind of data, a huge data is being provided, it's being analyzed to forecast, to take any kind of decisions, and there is no scientific approach also which may be beneficial in the decision making process, जिसकी वजह से ये जितना भी पूरा प्रोसेस है ये एक कहने के लिए इजी लगता है लेकिन इट्स नॉट एन इजी टास्क. It's a very complicated approach because it involves different huge amount of data which needs to be analyzed on the basis of which the decision may be taken by the people. And next is when we talk of management accounting, we talk of the decision making process by the people who are there in the management team. But this process is only a system where the information is being provided so that the people who are involved in the decision making process, they may be at advantageous position and it would be easy for them to take any kind of decision. तो कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए उसको हेल्प कर रहा है लेकिन वो अपने आप में सक्षम नहीं है कि वो डिसीजन अपने आप से हो जाएगा. एंड इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. तो जो लोगों का दिमाग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग काम करते हैं, उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि उसकी जगह हम अकाउंटिंग सिस्टम को चेंज करके रिप्लेस हम कर दें कि instead of having people in the organization, we just replace it with this management accounting process. You can't do that. Apart from this, because it involves the concepts of cost accounting, it involves concepts of financial accounting. तो preparation ये दोनों की हो गई. उसके अलावा में एक पूरा एक नेटवर्किंग होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वी आर नॉट रिलाइंग ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटेंट और द कॉस्ट अकाउंटेंट. उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको आपके नेटवर्किंग के थ्रू मिलती है. जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्रेप वाइन का एक ऑप्शन पढ़ा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि जो हमारा चैनल है वो ऑफिशियल नहीं है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से आप जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, पास ऑन कर सकते हो, वो फॉर्मल तरीके से हो सकता है उतना एफिशिएंटली आप ना कर पाओ. तो यहाँ पर भी जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ a very large scale of networking where different kind of information flows within the network and it's being collected by the concerned people
and they take different kind of decisions. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक नेटवर्किंग जो है वो छोटी हो. You need to have a proper network so that a proper way is there to collect each and every kind of information. अगर आपके पास information system ही नहीं है जहाँ से आप information को collect कर पाओ, तो you'll not be able to take the benefit out of it by just you may miss any kind of information which may be very useful in the whole process. तो इसकी वजह से अब नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है. कब कहाँ किस तरह की इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है वो पता नहीं, कौन देगा वो नहीं पता. तो आपका एक नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक वाइड नेटवर्क के लिए यू नीड्स टू मेक सम काइंड ऑफ द पेमेंट, जिसकी वजह से जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो कॉस्टली पड़ जाता है कई बारी, क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं एक वाइड नेटवर्क को, एक रेंज जो आपकी एक तरीके से मैं अगर कहूँ उसको बढ़ाने के लिए यू नीड्स टू इन्वेस्ट more and more so that you get more and more and better and correct accurate information. इसके अलावा में lack of objectivity is one of the limitation of management accounting, where we talk of the interpretation of the information which has been provided by the management accountant. It may be influenced by the biased nature of the person who is interpreting the data. अब अगर मैं कोई डेटा की समरी बना रही हूँ, डेटा को एनालाइज कर रही हूँ, इंटरप्रेट करके कहीं लिखना है, रिपोर्ट बना के मुझे मैनेजर को देनी है. अब मुझे ये पता है कि मैनेजर को मुझ पे बहुत भरोसा है, मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे दूँगी उसने क्रॉस वेरीफाई नहीं करना है, जो मैंने स्टेटमेंट लिख के दे दी इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, he'll यूज़ दैट. तो हो सकता है कि व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर दूँ आसानी से, और उसमें जिसका मुझे फेवर करना होगा उसके हिसाब से आई कैन ईजिली मेक द चेंजेस इन दैट एंड शेयर इट विद द मैनेजमेंट पीपल. तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो भी डिसीजंस वो लेंगे वो डिसीजंस सही होंगे या गलत होंगे वो तो टाइम बताता है, बट बेटर हो सकते थे. क्यों? क्योंकि अभी जो डिसीजंस लिए हैं जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लिए हैं वो इंफॉर्मेशन आपकी बायस्ड इंफॉर्मेशन है, तो करेक्ट डिसीजंस में नॉट बी देयर. तो ये इसमें एक दिक्कत आ जाती है कि अगर आपने बायस्ड होके कोई इंटरप्रिटेशन कर दी, आपने किसी को फेवर करने के चक्कर में उसमें मैनिपुलेशन कर दी, तो फिर दिक्कत आएगी उसमें. इसके अलावा में लास्ट लिमिटेशन इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ. इसमें क्या है, द एग्जिस्टिंग स्टाफ who's working in the organization, they may resist for the implementation of the process of management accounting system, because every time they are working in the organization, they are being assigned any task, they are being given any kind of responsibility, they are answerable, they are responsible for that, और मैनेजमेंट उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, गैदर कर रहा है बार बार. तो उसकी वजह से स्टाफ को लगेगा कि हम पे नज़र रखी हुई है, हमारे सर पे बैठे हुए हैं, हमारा हम कंट्रोल के अंडर में ज़्यादा आ गए हैं. तो दे मे रेजिस्ट कि हम पर इतनी नज़रें क्यों रखी हुई हैं. तो दे मे फील अनकम्फर्टेबल, दे मे रेजिस्ट, कि उनको वो समझ ही नहीं आएगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है. तो लैक ऑफ नॉलेज भी आ जाती है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है, इफ़ दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, इफ़ दे आर फसी, दे आर अनकम्फर्टेबल, तो उन लोगों को फिर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के टाइम पे भी प्रॉब्लम आएगी. अगर कोई और कलेक्ट कर रहा है तो भी वो रेजिस्ट कर सकते हैं. तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन इट मे बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वेयर द स्टाफ is giving they are not giving their support, and they're resisting from the usage of this kind of technique, which is known as management accounting technique. Now coming to the another main concept which we have to study is the cost reduction and cost control. This is I think the last theoretical aspect which we have to discuss in today's lecture. Then we'll tomorrow we will ओके. आपने कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जो टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं.
नॉर्मली देखो, जो अगर बहुत टेक्निक्स की, अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो टूल्स टेक्निक्स हैं उसमें दे विल नॉट आस्क कि टूल्स के नाम बताओ और उसको एक्सप्लेन कर दो। जो टूल्स टेक्निक्स हैं, जो हमारे 5 यूनिट हैं, फर्स्ट यूनिट जो हम आज कर रहे हैं, आज ही फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। इट्स बेसिकली द होल थ्योरी चैप्टर, द फर्स्ट यूनिट। इसके बाद में जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं हमारी, उन पर ही बेस्ड है। तो दे विल आस्क कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो जो टूल्स एंड टेक्निक्स की मैं आपको लिस्ट दिखा रही थी अपनी पीडीएफ में, दे कोटेड 16 टेक्निक्स, जिसमें से हमें कुछ पढ़नी है। तो फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक ऑफ वन ऑफ द टेक्निक विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो द क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे मैं आस्क यू कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या होते हैं, या वेरिएंस एनालिसिस क्या होती है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, यू हैव व्हाट ऑल टाइप ऑफ बजट्स वी हैव, हम कितने तरीके के बजट्स बनाते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, इस तरह का आ सकता है। बट जनरली इसके अलावा में जो सारे चैप्टर्स हैं ये वाले टूल्स टेक्निक्स के बेसिस पर, दे आर द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें से आएंगे। तो थियरी वो दे कैन आस्क यू एनीथिंग, बट दे विल नॉट आस्क यू कि आपको उनकी लिस्ट देनी है, तो दे विल नॉट आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ लास्ट topic for today's class is cost reduction and cost control. अब cost reduction और cost control आप अपने आप से खुद सोचिए कि आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है टर्म सुन के। टेक्निकल क्या है उसको आप छोड़ दो, आप एक सेकेंड सोचो कि कॉस्ट कंट्रोल से क्या मतलब है और कॉस्ट रिडक्शन से क्या मतलब है, और दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, दोनों सेम है क्या। तो आप कॉस्ट, अगर मैं इनको शब्दों को तोड़ दूं, अलग अलग कर दूं, चारों को, कॉस्ट को, रिडक्शन को, कंट्रोल को, तो कॉस्ट में हम बात करते हैं तो कॉस्ट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर विच वी इनकर टू अक्वायर समथिंग। मुझे कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, उस कुछ पाना है, उसके लिए मैंने क्या दिया है वो मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट का जनरल मतलब यही होता है। रिडक्शन का मतलब होता है इन जनरल कम करना, रिड्यूस कर देना, और कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल कर देना कि हमने उसमें मतलब अपना, हमारा उस पर हम जो करना चाह रहे हैं हम वो कर पा रहे हैं। अब इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर हम लगाएं कॉन्सेप्ट को, कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल को, तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एवरीवन वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते थे, दो ऑप्शंस। एक, ईदर हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं उसमें हम सेल्स या सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें, या हम कॉस्ट को कम कर दें, तभी हमारा प्रॉफिट, या दोनों काम कर दें। यही, इन्हीं दो चीज़ों से, ईदर यू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस और सेल्स, और डिक्रीज द कॉस्ट। यही दो तरीके हैं हमारा प्रॉफिट को इंक्रीज करने के तरीके के लिए। जब हम कॉस्ट की रिडक्शन की बात करते हैं, कॉस्ट की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं प्रॉफिट के, तो कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसपे हमारा थोड़ा सा कंट्रोल कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, कॉस्ट में भी नो डाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो कॉस्ट को इम्प्रूव करके, कॉस्ट को कम करके हम सेलिंग प्राइस को, आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंट्रोल का। कॉस्ट कंट्रोल में क्या है, कॉस्ट कंट्रोल इज बेसिकली इट्स डिफाइंड एज द रेगुलेशन by executive action of the cost of operating an undertaking, particularly where action is guided by cost accounting। अब इसमें इसको सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो क्या है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज की अगर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, तो वी हैव डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं प्रोडक्ट को बना भी रही हूँ या सर्विसेज दे रही हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ और पैसे कमा रही हूँ, सेल्स कर रही हूँ या सर्विसेज दे रही हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग इज that we have different kind of resources which are available, which are being utilized
and when we talk of the utilization of resources, we are talking of the best utilization, optimum utilization of the resources, thereby preventing any kind of wastage of the resources. तो हम चाहते हैं कि जो resources हम use कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम एलोकेशन हो, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, किसी भी तरीके की वेस्टेज ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज में भी इन स्कैरसिटी ऑल्सो, एक लिमिटेड में फिगर में तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अगर, तो हम लोग जब भी रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात करते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हम उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, हम बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम वो करें. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल कॉन्सेप्ट, वी आर टॉकिंग ऑफ द बेस्ट यूजेज ऑफ the resources which are being used in the organization. No wastage should be there, and the optimum allocation, optimal utilization of resources should be there. तो हमारे जो उसकी जो कॉस्ट है वो एक लिमिट में रहेगी. अगर कोई दिक्कत है ही नहीं, करे जाओ, वेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वेस्टेज नहीं रोक पाएंगे. अगर मान लीजिए हम लेबर से काम करा रहे हैं अपनी कंपनी में और लेबर को हमने कह दिया, लेबर को पता है कि मैडम को कोई टेंशन तो है ही नहीं, कुछ अगर कटिंग कर रहे हैं मान लीजिए वेस्ट हो भी रहा है, कोई कहने वाला कुछ नहीं है, तो वो वेस्टेज होती चली जाएगी और मेरी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी क्योंकि मटेरियल मेरा वेस्ट हो रहा है. तो यहाँ पर जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन शुड बी ऑप्टिमम. तो बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर रिसोर्सेज का हम कर देंगे तो जो वेस्टेज हो सकती थी वो हमने पहले ही रोक रखी है, जिसकी वजह से हम कॉस्ट कंट्रोल को कर पाते हैं. अब जब स्टेप्स की हम बात करते हैं, कंट्रोल जो प्रोसेस है, कॉस्ट कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अब कॉस्ट का मतलब है मेरा कोई खर्चा, उसको मुझे कंट्रोल करना है, तो कॉस्ट कंट्रोल इज कि मुझे उसको कंट्रोल करके रखना है. ये नहीं कि ऑप्शन आप खर्चा हुए चले जा रहे हैं कि 100 के 500 रुपये खर्च हो गए, 100 के 110 रुपये समझ में आते हैं, 120 रुपये भी समझ में आ जाएंगे, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में 200 भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन 100 के 500 समझ नहीं आएंगे. तो एक लिमिट वेरिएशन हो सकती है, लेकिन एक लिमिटेड वेरिएशन हो सकती है, अदरवाइज इट हैज़ टू बी इन द लिमिट्स विच वी हैव सेट. तो जब हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप है हमें जो ध्यान रखना है, इट्स बेसिकली वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू सेट द सीलिंग और द नॉर्म्स which may be set as the yardstick to measure the performance. जैसे अगर कोई परफॉर्मेंस होनी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें मैंने कैलकुलेशंस करके ये देख लिया कि इस यूनिट को बनाने के लिए 1000 रुपये लगेंगे, तो वो एक मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस एक यूनिट को बनाने में अप्रॉक्सीमेटली आई विल बी इनकरिंग 1000 रुपीज़. तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन जो मेरे दिमाग में होगा वो तो चला लूँगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000 के 2000 नहीं चलाऊँगी, 1000 के 1500 नहीं चलाऊँगी, उसमें अगर थोड़ा वेरिएशन है तो ठीक है, लेकिन अगर वेरिएशन नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस क्यों है, 1000 के मैंने 1500 खर्च क्यों किए. तो पहला स्टेप क्या था, जहां मैंने वो 1000 फिक्स किए, तो बेसिकली मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड को सेट किया पिछले ट्रेंड के बेसिस पर, जो पीछे पास्ट में काम हुआ है उसके बेसिस पर मैंने ट्रेंड सेट करके ये कैलकुलेशंस करी, एस्टिमेट करके फोरकास्टिंग कर दी कि अब जो काम होना है इसके लिए, अब जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसके लिए 1000 रुपये एक यूनिट के लिए मुझे इनकर करने हैं. तो बेसिकली एट द फर्स्ट स्टेप व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट सेटिंग द नॉर्म्स, आई एम सेटिंग द स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पर आगे मैं काम कराऊंगी. अब सेकंड स्टेप क्या है, अब एक्चुअल काम हो रहा है. अभी मैंने क्या सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किया कि एक यूनिट इस प्रोडक्ट ए की 1000 रुपये में बनेगी, मेरी कॉस्ट इतनी आएगी. अब जब एक्चुअल काम होगा तो हो सकता है 1000 रुपये हो सकता है 1000 से कम हो सकता है 1000 से ज़्यादा हो. तो जब एक्चुअली जब मेरा काम हो चुका, जब प्रोडक्ट बन गया, तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल मैंने कॉस्ट पर यूनिट कितनी इनकर की है. तो नाउ दिस इज द सेकंड स्टेप वेयर आई विल बी calculating the actual cost which has been incurred in the whole process of manufacturing of unit, and then I will make comparison. ये सारा सेकंड स्टेप में है कि पहले मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ एक्चुअल की कि एक्चुअली हुआ क्या, और फिर उसको कंपेयर कर रही हूँ जो मैंने पहले स्टेप में स्टैंडर्ड को सेट किया था कि मैंने सेट किया 1000 रुपये में बनेगा, बनकर आया 1000 रुपये में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वेरिएशन है ही नहीं,
इसका मतलब मेरी सारी की सारी प्लानिंग और जो कैलकुलेशन वर्क था बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन वेरिएशन हो सकता है। अब वेरिएशन मुझे पता चला सेकंड स्टेप में कि वेरिएशन है या नहीं। तो वेरिएशन अगर है तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि किस साइड पे है, डिफरेंस किस साइड पे है। 1000 रुपये मैंने सोचे थे, बना वो 1500 में, एक्स्ट्रा 500 रुपये लगे। तो भैया एक्स्ट्रा 500 रुपये क्यों लगे, और वो बना 700 रुपये में, तो 700 रुपये कम में बन गया तो बहुत अच्छी बात है। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हाँ मैंने 300 रुपये बचा लिए। बट नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा दिमाग घूमेगा, यार ये मैंने जो फोरकास्ट किया था वो 1000 का किया था, बन तो मेरा 700 में गया, तो अगली बार मैं क्या करूंगी, फिर 1000 का थोड़े ना बजट बनाऊंगी, फिर कम का बनाऊंगी। तो आई जस्ट मेक द करेक्शन, आई ट्राई, आई टेक द रेमेडियल एक्शंस उसकी या मेजरमेंट जो, ताकि दोबारा से इस तरह से ना हो, वेरिएशन ना हो। तो वेरिएशन 1000 की 700 रुपये आएगी, मैं खुश तो हो जाऊंगी क्योंकि मेरे लिए फेवरेबल है, लेकिन मुझे लगेगा मैंने 300 रुपये रखे हुए थे, मैं कहीं और लगाती तो मुझे इसमें पैसा आ जाता, कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाता। अभी तो मैंने रखा था काम के लिए, और 1000 के 1500 लगाए तो 500 रुपये मुझे अरेंज करके रखने पड़े। तो वो मैं हर बार क्यों करूंगी कि मैं एक्स्ट्रा 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 करती रहूंगी कि हर बार मैं 1000 का सोचूं और खर्चा तो 1500 का होता है। तो फिर मैं अगली बार 1500 का ही सोचूंगी या कुछ एवरेज निकाल दूंगी। तो बेसिकली इन थर्ड स्टेप व्हाट वी डू इज वी टेक द रेमेडियल और करेक्टिव मेजर्स व्हिच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ so that the reoccurrence of such kind of variations will not be there in the future। तो जो हम कोशिश यही करते हैं कि वेरिएशन ना आए। वेरिएशन अगर आता है तो वी नीड्स टू हैव रेमेडियल एक्शंस और द करेक्टिव मेजर्स सो दैट द वेरिएशन इज नॉट देयर। और अगर 19-20 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंट्रोल का। अब ये सारा टेम्परेरी फेज पे चलता है, हर बार के लिए अलग अलग है, इस बार ऐसा है अगली बार कुछ होगा, तो इट्स नॉट बेसिकली परमानेंट इन नेचर। जैसे जैसे काम हो रहा है उसके हिसाब से अगली बार आप चेंजेस कर सकते हो और होते हैं। कॉस्ट रिडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट रिडक्शन के कॉन्सेप्ट में इज बेसिकली परमानेंट इन नेचर इन द सेंस when we talk of cost reduction we are talking of the reduction in the cost permanently, long term के लिए cost को हम कम कर रहे हैं। तो it's basically the achievement of real and permanent reduction in the unit cost of goods which have been manufactured or the services which have been rendered without any kind of impairing their suitability for use intended। तो हम लोगों का एक परमानेंट तरीके का रिडक्शन आ जाता है कॉस्ट में, परमानेंट नेचर का होता है, वो हमारा होता है कॉस्ट रिडक्शन का। ये टेम्परेरी फेज पे नहीं है, चलता ही रहेगा लंबे टाइम तक। पहला जो था कॉस्ट कंट्रोल का, उसमें हम पिछले ट्रेंड के हिसाब से अब का देख के अब का बना रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन में इट्स परमानेंट इन नेचर फॉर लॉन्ग टर्म where we are talking of increase in productivity, change in product design, improvement in technology। अगर इस तरह के changes हैं तो वो आपकी कॉस्ट को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बेटर तरीके से काम होता है। जो काम करने में पहले 4 घंटे लगते थे, अब वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई कि वो आधे घंटे में हो जाता है, एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया। अब जो 4 घंटे का काम अगर आधे घंटे में हो रहा है तो आप उसकी जगह कोई और काम भी करा सकते हो। तो बिकॉज एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज्ड परमानेंटली, तो वो आपका कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन में। Cost reduction should be suitability, it should not be linked with the suitability of product and services for the intended use। like when we talk of cost reduction it should not be at the cost of essential services of the product or services। तो essential characteristics जो हैं उसके अलावा में आपके लिए है permanent in nature होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग टेम्परेरी फेज की बात करते हैं, जहां हम पास्ट के बेसिस पर ये देखते हैं कि अब या इस टाइम पे जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हम किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पा सकते हैं, ताकि हमें वो चीज़ें नुकसान में ना जाए हमारे रिसोर्सेज। और जो फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली जितने की ज़रूरत है उतना हम बेयर कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन टेम्परेरी फेज पे, कॉस्ट रिडक्शन में टेम्परेरी फेज की बजाय लॉन्ग टर्म में परमानेंट इन नेचर होता है कि हम ओवरऑल में प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं, एफिशिएंसी को एनहांस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। तो ये आपका कॉस्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में आप कहीं कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, सिमिलर लगते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंस है। पहला कॉस्ट कंट्रोल में मैंने जैसे बताया कि इट्स बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड टारगेट ऑफ कॉस्ट, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन
इट्स बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। तो एक में टेम्परेरी फेज पे है, कुछ टाइम के लिए है कॉस्ट कंट्रोल में, और कॉस्ट रिडक्शन में वी आर टॉकिंग ऑफ द परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ओवरऑल। उसके अलावा जो डिफरेंस है, it's basically the cost control is it tends to assume a static state of affairs that standards once set are not challenged। कि अगर मैंने एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसको फिर आप चेंज नहीं करोगे। हिस्टोरिकल बेसिस के डेटा के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो अब मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकती। जो हो गया है वो हो गया है कॉस्ट कंट्रोल के मैकेनिज्म में। कॉस्ट रिडक्शन में क्या है, it's basically assuming the existence of concealed potential savings in the standards or the predetermined cost for set of cost control, and you can challenge these standards। तो ये permanent in nature का होने की वजह से frequency अगर है changes की, तो अगर हम इसको long term की अगर हम बात करते हैं तो basically it's going to change, जैसे जैसे काम होगा उसके हिसाब से हम उसमें changes ला सकते हैं। Cost control में क्या है, third point, it's basically concerned with predetermined cost, where we are comparing it with the actual performance and then analyzing the differences if any, and then in case of variation taking the remedial or corrective actions so that it is not repeated in the near future। और cost reduction में क्या है, it's basically concerned with finding out a new product design, different kind of methods which can be used in the organization। It's not talking of the maintenance of performance according to predetermined targets। Next difference between these two is cost control की अगर हम बात करते हैं तो it's basically a preventive function because it is aiming at the prevention of the cost from exceeding the predetermined target। हमने एक टारगेट सेट कर रखा है, उसे एक्सीड नहीं करने देगा वो आपको, वो आपके लिए कॉस्ट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। और कॉस्ट रिडक्शन में एक करेक्टिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स हैं उसको हम चैलेंज करके उसमें परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। Cost control में when we talk of cost control, it's basically a part of cost accounting function, and the cost reduction may be achieved even when no cost accounting system is in operation। तो cost accounting है या नहीं है, cost reduction से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके कुछ differences थे cost control और cost reduction में। This we can skip। Cost reduction और cost control में again we have different kind of techniques which can be used for the temporary or permanent reduction in the cost। इसमें से हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल पढ़ना है, बाकी हमें नहीं पढ़ने हैं। एंड विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टुमारो। अभी आज के लिए चैप्टर ये वाला फर्स्ट यूनिट जो है हम लोगों की ख़त्म हो गई है। ओके, आई थिंक सपोज 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या 15 मार्क्स के क्वेश्चन, तो भी क्वेश्चन में कितना थ्योरी लिखना है अकॉर्डिंग टू पेजेस टॉपिक। ओके शिफाली, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसमें 10 या 15 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो हाउ लॉन्ग द आंसर शुड बी। देखिए, अगर आप लेंथ की बात करोगे तो लेंथ के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं आपको ये बताऊँ कि 4 पेज लिखने की 10 पेज लिखने हैं। बेसिकली चाहे पेपर में क्वेश्चन 10 नंबर का है चाहे 15 नंबर का है, रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो सारे कवर अप करने हैं। आप डिफरेंस कहाँ कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि टाइम की शॉर्टेज है या आपको लगता है कि 10 और 15 के हिसाब से, जैसे आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का डिफरेंस है, तो मे बी कि अगर आपको लगता है कि आप 10 नंबर का कर रहे हो तो पॉइंट्स आप सारे लिखो, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम कर दो। अगर 15 नंबर का है तो उसमें इलेबोरेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, बट पॉइंट्स आपके सभी कवर होने चाहिए। कोई भी टीचर जब भी पेपर चेक करेगा तो दिल नॉट सी कि हाउ लेंदी इज़ योर आंसर, कि आपने कितने पेजेस भरे हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द कंटेंट शुड बी मोर देन इनफ, जितना सफिशिएंट है, जो आपने पढ़ा हुआ होगा कॉन्सेप्ट वो आपको पॉइंट सारे लिखने पड़ेंगे, वेदर इट्स 10 मार्क्स क्वेश्चन और इट्स 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो डोंट गो विद द लेंथ ऑफ योर आंसर। इसके अलावा मैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपको कौन से ऑथर की बुक लेनी है, ये मैंने आपको बताया है। 3 बुक्स मैंने आप लोगों को रेफ़र कर दी हैं। इट्स बाय डॉक्टर M.N. अरोड़ा।
एक राजीव गोयल की किताब आती है और एक महेश्वरी मित्तल। आपको जो लाइब्रेरी से मिल जाए आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, किसी की पुरानी आपके पास है आप सेकेंड हैंड पुरानी ले सकते हैं, आपको परचेज करनी है आप जैसे भी आपके पास जो ऑप्शंस हैं इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, तीनों किताबें अच्छी हैं। ओके, फॉर टुडे द लेक्चर इज़ ओवर। टुमारो विल स्टार्ट विद द बजटिंग कंट्रोल जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। Okay, now see you all tomorrow at 10 a.m. Till then, take care. Bye bye.